बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। Advances in supply chain management. We are on part 2 and today we are going to start chapter number 11, Purchasing and Material Requirements Planning. There are different learning objectives of this chapter, amongst which number 1 is to explain the basics of material requirements planning. Material requirements planning की basics क्या क्या है इनको explain करना. Then detailed understanding of generation and time of uncritical orders. Detailed understanding of generation और वक्त of uncritical orders. किस वक्त जनरेट किए जा सकते हैं, किस वक्त इनको रखा जा सकता है. Number 3, quantity discounts and supplier selection. To describe the way APS can support the selection of suppliers and the decisions on order sizes taking into account the specific cost functions of suppliers, which often allow for quantity discounts. This may apply to input materials for production, indirect materials and articles of merchandise. So these would be different learning objectives of today's lecture. As usual, before going towards today's layout and lecture, let's have a little bit summary of the last lecture. The lecture which we completed in the last class had described the underlying decision situations using APS in production planning and scheduling. It included the discussion of how to proceed from a model to a solution. इसमें हम लोगों ने बात की कि कैसे मॉडल से सोल्यूशन तक मूव किया जा सकता है. Steps of model building were explained in detail. Further, optimized solution of updating a production schedule through advanced software was also discussed with the help of an example. So हम लोगों ने डिटेल में पिछली क्लास में ये देखा था कि कैसे प्लानिंग और स्केजुलिंग हो सकती है. फिर हम लोगों ने मॉडल बिल्डअप करना सीखा था. वी डिस्कस्ड मल्टीपल स्टेप्स इन द मॉडल बिल्डिंग, जिसमें एक लूप वाली बात भी थी एंड अलॉट. तो दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर. टुडे द लेआउट ऑफ टुडेज लेक्चर वुड बी बेसिक्स ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की बेसिक्स क्या है, जनरेशन एंड टाइमिंग ऑफ अनक्रिटिकल ऑर्डर्स. अनक्रिटिकल ऑर्डर्स कब जनरेट होते हैं और उनकी टाइमिंग्स क्या है. क्वांटिटी डिस्काउंट्स एंड सप्लायर सिलेक्शन. हाउ टू गिव क्वांटिटी डिस्काउंट्स और सप्लायर्स को कैसे डिस्कस किया जाए, सिलेक्ट किया जाए. सिंपल एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द डिसीजन सिचुएशन. फिर हम एक सादी सी एग्जांपल करेंगे जिसमें डिसीजन सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे. तैयार हैं आप लोग? तो शुरू करें. ओके. बेसिक्स ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग. मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग MRP is regarded as the core engine of an ERP system. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को कोर इंजन समझा जाता है किसी भी ERP सिस्टम का, which calculates time phased plans of secondary demands for components and parts based on a time series of primary demands. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को एक कोर इंजन समझा जाता है ERP सिस्टम का, जो कि कैलकुलेट करता है टाइम फेस्ड प्लान्स को सेकेंडरी डिमांड्स के लिए फॉर कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स बेस्ड ऑन अ टाइम सीरीज. कंपोनेंट्स और पार्ट्स के लिए जो कि टाइम सीरीज पर बेस करते हैं प्राइमरी डिमांड्स का, यूजुअली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. Time phase secondary demands are a prerequisite for generating production or replenishment orders so that demands for finished products can be met in time with as little work in process and inventory as possible. तो time phased secondary demands एक prerequisite होता है प्रोडक्शन को जनरेट करने के लिए या ऑर्डर्स के रिप्लेनिशमेंट के लिए, ताकि डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो इन टाइम पूरी की जा सके, एक थोड़े से वर्क इन प्रोसेस और इन्वेंट्री के साथ जितना पॉसिबल हो सके. सो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का बेसिक फंक्शन क्या है, ताकि हम लोग इन टाइम वर्क इन प्रोसेस और इन्वेंट्री के साथ साथ हम लोग इन टाइम अपने ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकें.
Although most appealing, this logic suffers from ignoring available capacities. Although बहुत अपीलिंग है, ये लॉजिक सफ़र करती है इग्नोरिंग वेरिएबल अवेलेबल कैपेसिटीज को. Consequently, production orders may result in overloaded capacities. नतीजतन प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं ये रिजल्ट होते हैं ओवरलोडेड कैपेसिटीज में, एंड दस इनफिजिबिलिटीज, और फिर इनफिजिबिलिटीज में. Experience has shown that a two-step procedure, that is first calculating all secondary demands and then balancing capacities by means of an ERP's capacity requirements planning module, does not provide satisfactory solutions. For a further discussion of the drawbacks of ERP systems, see Drexel et al. 1994 or Templemier and Durstroff 1996. एक्सपीरियंस दो स्टेप प्रोसीजर को शो करता है. एक, फर्स्ट कैलकुलेटिंग ऑल सेकेंडरी डिमांड्स, सबसे पहले तो तमाम सेकेंडरी डिमांड्स को कैलकुलेट किया जाए, एंड देन बैलेंसिंग कैपेसिटीज बाय मींस ऑफ ईआरपीज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, और फिर उसके बाद बैलेंस किया जाए तमाम कैपेसिटीज को बाय मींस ऑफ ईआरपी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग मॉड्यूल, डज नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशंस, जो कि सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करता. These drawbacks gave rise to develop APS. इन drawbacks की वजह से APS develop होता है, which do not separate the generation of secondary demands, जो कि secondary demands को separate नहीं करता, and capacity balancing और capacity balancing को. However, in order to reduce complexity, APS concentrate on operations to be performed on potential bottlenecks, which usually are only a small subset of all operations relating to factory orders. तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए एपीएस कंसंट्रेट करता है ऑपरेशंस पर जिनको परफॉर्म करना है पोटेंशियल बॉटलनेक्स पर, जो कि अमूमी तौर पर स्मॉल सेट ऑफ ऑल ऑपरेशंस जो कि फैक्ट्री ऑर्डर से रिलेट करते हैं उन पर बेस करता है. The time needed to execute non-bottleneck operations, including transport in between two adjacent critical operations, is taken into account by a fixed lead time offset. वक्त जो कि ज़रूरी होता है एग्जीक्यूट करने के लिए नॉन बॉटलनेक ऑपरेशंस को, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, दो एडजेसेंट क्रिटिकल ऑपरेशंस के दरमियान is taken into account by a fixed lead time offset. Once plans have been generated for critical operations, एक दफ़ा जब प्लान जनरेट हो जाते हैं क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए, the timing and quantities of non-critical operations can be calculated. तो टाइमिंग और क्वांटिटीज जो हैं नॉन क्रिटिकल ऑपरेशंस की उनको कैलकुलेट किया जा सकता है इजीली बाय मेकिंग यूज ऑफ स्टैंडर्ड एमआरपी लॉजिक. स्टैंडर्ड एमआरपी लॉजिक बनाने के साथ. More important is a discussion of issues occurring when using MRP in conjunction with an APS. ज़्यादा important वो discussion है issues की जो कि होती है जब हम MRP को इस्तेमाल करते हैं with conjunction of APS. First of all, we have to decide on the time series of primary demands. सबसे पहले हमें decide करना होता है time series of primary demands को to take as starting point. उनको starting point के तौर पर लेते हुए these may be production quantities per period for critical product groups calculated in master planning. ये हो सकती हैं production quantities per period जो कि product groups के लिए होती हैं और calculate होती हैं master planning में. Second, production quantities per period for critical operations calculated in the production planning module. सेकेंड है प्रोडक्शन क्वांटिटीज पर पीरियड जो कि क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए कैलकुलेट की जाती हैं इन द प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, और क्रिटिकल प्रोडक्शन ऑर्डर्स जनरेटेड इन द स्केड्यूलिंग मॉड्यूल. फिर क्रिटिकल प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो कि जनरेट होते हैं मॉड्यूल स्केड्यूलिंग के लिए. इन केस वी लुक फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पार्ट्स टू बी परचेज्ड फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फर्स्ट करें हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ पार्ट्स जो कि परचेज की जानी चाहिए आउटसाइड सप्लायर से एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में, फॉर एग्जांपल फॉर नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद सप्लायर्स और प्रोवाइडिंग एन आउटलुक ऑफ एक्सपेक्टेड पार्ट डिमांड्स टू सप्लायर्स.
मिसाल के तौर पर निगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स सप्लायर्स के साथ, या एक आउटलुक ऑफ एक्सपेक्टेड पार्ट डिमांड्स टू सप्लायर्स को प्रोवाइड करना, तो मास्टर प्लानिंग विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। मास्टर प्लानिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। नोट दैट डिमांड्स फॉर प्रोडक्ट ग्रुप्स हैव टू बी डिसएग्रीगेटेड इनटू डिमांड्स ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स बिफोर स्टार्टिंग द एमआरपी लॉजिक। ये नोट करना चाहिए कि डिमांड्स फॉर प्रोडक्ट ग्रुप्स हैव टू बी डिसएग्रीगेटेड, इनको डिसएग्रीगेट करना पड़ेगा इनटू डिमांड्स ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स में एमआरपी लॉजिक को स्टार्ट करने से पहले। मॉड्यूल्स प्रोवाइडिंग द इनपुट डाटा, प्रोडक्शन क्वांटिटीज फॉर परचेजिंग एंड एमआरपी। दिस फिगर इज लाइक दिस। अगर आप लोग देखिए तो वो वी हैव 4 डिफरेंट फंक्शंस, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स। लॉन्ग टर्म में है स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन, फिर मिड टर्म में है मास्टर प्लानिंग, शॉर्ट टर्म में है परचेजिंग एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, जो कि मूव ऑन हो रही है मास्टर प्लानिंग से या और प्रोडक्शन प्लानिंग और स्केजुलिंग से। देन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, डिमांड फुलफिलमेंट एंड एटीपी। तो ये पूरा का पूरा मॉड्यूल है फॉर परचेजिंग एंड एमआरपी। फॉर प्लेसिंग रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर्स or for the timing of uncritical operations, production orders, either production planning or scheduling will be the source of information. replenishment orders को place करने के लिए या timing of uncritical operations जिसे production orders के लिए या तो production planning या scheduling को source of information बनाया जाएगा या scheduling की जाएगी उसकी। If production planning is chosen, अगर production planning को choose किया जाता है, demands per time bucket will result, तो demand per time bucket आपके पास नतीजतन आ जाएगी। While scheduling will give the exact timing of the start of production orders, scheduling आपको exact timing of the start of production orders देगी। Hence, scheduling best corresponds to a bucket less continuous time access MRP। इसका मतलब है कि scheduling जो है ये best correspond करती है एक bucket को less continuous time access MRP, while the two former are best suited for a bucket oriented MRP logic। जबकि दो पहले वाले जो हैं ये best suited हैं एक bucket of oriented MRP logic के लिए। Both time access are possible today। Walmanut et al. 1997. In the following, we assume production planning to be starting point. इसको हम लोग assume करते हैं production planning को as a starting point. As additional data we'll need. As additional data हमें ये चीजें चाहिए होंगी। Number 1, bill of materials. Bill of materials indicating for each part number which other part numbers are required as direct inputs. बिल ऑफ मटीरियल जिसके अंदर हर पार्ट नंबर मेंशन होना चाहिए, विच अदर पार्ट नंबर्स आर रिक्वायर्ड एज डायरेक्ट इनपुट्स, जिसमें दूसरे पार्ट नंबर जो हैं एज ए डायरेक्ट इनपुट चाहिए होंगे। प्रोडक्शन कोएफिशिएंट्स इंडिकेटिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच डायरेक्ट इनपुट पार्ट नीडेड फॉर 1 यूनिट ऑफ अ गिवन पार्ट नंबर। प्रोडक्शन कोएफिशिएंट्स जो कि इंडिकेट होते हैं द क्वांटिटी ऑफ ईच डायरेक्ट इनपुट part needed for 1 unit of a given part number, जिनकी जरूरत होती है 1 यूनिट ऑफ गिवन पार्ट नंबर के लिए। लीड टाइम्स रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, लीड टाइम जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम को, नीडेड बिटवीन रिलीजिंग एन ऑर्डर, जिनकी जरूरत होती है एक ऑर्डर को रिलीज करने के लिए, फॉर अ पार्ट नंबर एंड इट्स अवेलेबिलिटी, एक पार्ट नंबर और उसकी अवेलेबिलिटी के लिए। इफ यू जस्ट सी देयर आर 3 different steps, E1 which is distributed into C1 P3, then C1 is P1 P2 and E2 P3 and P4. Explanations: E1 E2 represent end products, C1 a component and P1 P2 P3 single parts, single digits indicate production efficiency. Materials in circles are regarded as critical, materials in boxes are uncritical.
Bill of materials for end products E1 and E2 as well as low level codes. The inventory status indicating for each part number, the physical stock at hand, scheduled receipts, that is outstanding orders and work in process reservations, back orders and safety stock levels. इन्वेंट्री स्टेटस जो है इंडिकेट करता है हर पार्ट नंबर को जिसमें फिजिकल स्टॉक एट हैंड, scheduled receipts, that is outstanding orders and work in process, reservations, back orders और safety stock level शामिल हैं. Low level code numbers. A low level code of a part number or operation corresponds to the longest path in the product structure, starting with an end item and terminating in the respective part number. एक low level code एक पार्ट नंबर का या ऑपरेशन जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है लॉन्गेस्ट पाथ को प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में, जो कि स्टार्ट होता है एंड आइटम से और टर्मिनेट करता है रेस्पेक्टिव पार्ट नंबर पर. ऑल पार्ट्स विजिटेड अलोंग द पाथ आर काउंटेड यील्डिंग द लेवल कोड. तमाम पार्ट्स जो कि विजिट होते हैं पाथ के साथ साथ इनको काउंट किया जाता है एज ए यील्ड इन द लेवल कोड. Due to the fact that a part number may be used in several product structures, ये भी हकीकत है कि एक पार्ट नंबर को कई प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स में ऐड किया जा सकता है. The maximum has been taken for determining the low level code. मैक्सिमम लिया गया है लो लेवल कोड को डिटरमिन करने के लिए. By definition, a low level code 0 is attributed to end items. For an example, see figure 11.2. Low level codes have to be calculated preceding the bill of materials BOM explosion, that is generation of secondary demands to allow a pure sequential execution of calculations. तो low level codes जिनको calculate किया गया है preceding bill of material के अंदर, ये secondary demand को generate करते हैं एक pure sequential execution of calculations के लिए. Then generation and timing of uncritical orders. The generation of uncritical orders originating from production orders scheduled on bottleneck resources will be explained now by an example. ये generation of uncritical orders जो कि originate होते हैं production orders से, इनके schedules on bottleneck resources, इनको हम explain करते हैं इस example से. Firstly, the data required like the BOM will be presented. सबसे पहले जो हमें डाटा रिक्वायर्ड है BOM की तरह इसको प्रेजेंट करते हैं फिगर 11.2. सेकेंडली सम रिमार्क्स ऑन द जनरेशन ऑफ अ प्रोडक्शन प्लान विल फॉलो. सेकेंडली कुछ रिमार्क्स जो कि जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन प्लान से रेलेवेंट है ये फॉलो होंगे. एंड थर्डली वी विल शो हाउ टू डिराइव ऑर्डर्स फॉर अनक्रिटिकल ऑपरेशंस. और तीसरे नंबर पे हम शो करेंगे कि कैसे अनक्रिटिकल ऑपरेशन से ऑर्डर्स को डिराइव किया जाता है. Fourthly, a simplification is shown as proposed by APS vendors today. चौथे नंबर पर एक simplification दिखाई जाएगी जो कि APS vendors ने आज propose की है. E1 and E2 are completed on a highly utilized assembly line. E1 और E2 complete होते हैं एक highly utilized assembly line पर. Component C1 is produced in a manufacturing cell. कंपोनेंट C1 जो है ये प्रोड्यूस होता है एक मैन्युफैक्चरिंग सेल में. सिंस द मैन्युफैक्चरिंग सेल इज अंडर यूटिलाइज्ड इफ ओनली C1 इज प्रोड्यूस्ड. चूंकि मैन्युफैक्चरिंग सेल जो है वो अंडर यूटिलाइज है अगर सिर्फ C1 वहां पे प्रोड्यूस किया जाए. सरप्लस कैपेसिटी हैज बीन सोल्ड टू अ पार्टनर कंपनी. तो अब ऐसी सिचुएशन में आप जो सरप्लस सर्कुलर कैपेसिटी है वो अपनी पार्टनर कंपनी को बेच देते हैं. द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश्ड प्रायोरिटीज फॉर स्केड्यूलिंग ऑपरेशन C1. जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो एस्टैब्लिश करते हैं प्रायोरिटीज को फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन ऑफ C1. हेंस द मैन्युफैक्चरिंग सेल इज नो बॉटलनेक. तो मैन्युफैक्चरिंग सेल जो है वो बॉटलनेक नहीं होगा. P1 इज बॉट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर. P1 एक्सटर्नल सप्लायर से बाय किया जाता है. while P2 and P3 are processed on an injection molding machine which is a potential bottleneck. और P2 और P3 ये प्रोसेस होते हैं एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से जो कि पोटेंशियल बॉटलनेक रखती है. 2. Consequently, E1, E2, P2 and P3 are regarded critical operations for which
a production plan is generated by the APS module production planning. नतीजतन E1, E2, P2 और P3 ये रिगार्ड किए जाते हैं एज ए क्रिटिकल ऑपरेशंस, जिसके लिए प्रोडक्शन प्लान जनरेट किया जाता है APS मॉड्यूल प्रोडक्शन प्लानिंग के थ्रू. In addition to the data shown in figure 11.2, lead time offsets are needed for each operation. डाटा जो 11.2 में बताया गया, इसके अलावा लीड टाइम ऑफसेट्स की भी जरूरत होती है हर ऑपरेशन के लिए. फॉर द एग्जाम्पल प्रेजेंटेड हेयर वी अज्यूम 1 पीरियड एक्सेप्ट फॉर C1. इधर के एग्जाम्पल के लिए हम प्रेजेंट करते हैं एक पीरियड को C1 की जगह, विच हैज अ लीड टाइम ऑफ 2 पीरियड्स, जिसका लीड टाइम है 2 पीरियड्स का. While lot sizing plays a major role for critical operations, चूंकि lot sizing एक major role play करती है critical operations के लिए, incurring setup times और setup costs on potential bottlenecks, जो कि setup time और setup costs incur करती है potential bottlenecks पे. Since time is not scarce at non-bottlenecks, चूंकि टाइम बहुत कम नहीं है नॉन बॉटलनेक्स पे, एंड आर सेव्ड बाय सेविंग सेटअप टाइम इज ऑफ नो वैल्यू. 1 घंटा जो कि सेव किया जाता है सेविंग सेटअप टाइम से, ये किसी वैल्यू का हामिल नहीं है. हेंस अ लॉट फॉर प्रोडक्शन दैट इज नो लॉट साइजिंग, इसलिए लॉट फॉर लॉट प्रोडक्शन जो है दैट इज जिसका कोई लॉट साइज नहीं, फॉर नॉन क्रिटिकल ऑपरेशंस इज एडवाइजेबल. Exceptions may only occur in case of technological reasons. Exceptions सिर्फ technological reasons की वजह से occur हो सकती हैं. Relating to production और transport activities, जिनका ताल्लुक production या transportation activities की वजह से हो, requiring some minimum quantity or integer multiple of a fixed amount to work properly. जिनकी जरूरत होगी कुछ minimum quantity और इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, जिसकी वजह से काम प्रॉपर हो सके. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन इन फुल टब लोड्स. ऑफन कंपनीज मेक यूज ऑफ फिक्स्ड लॉट साइजेस बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अक्सर कंपनियां फिक्स्ड लॉट साइजेस पर बेस करती हैं अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को. नोट दैट दीज लॉट साइजेस शुड नॉट बी रिगार्डेड एज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस. ये भी नोट करें कि इन लॉट साइजेस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस कंसिडर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इवन अ सिग्निफिकेंट डेविएशन विल इंक्रीज टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओनली मार्जिनली. चूंकि एक सिग्निफिकेंट डेविएशन जो है वो इंक्रीज कर सकती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सिर्फ मार्जिनली. फॉर एग्जांपल assume an optimal lot size Q corresponding to a time between orders TBO of 5 weeks. फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करें एक ऑप्टिमल लॉट साइज को जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता हो टाइम बिटवीन ऑर्डर्स 5 हफ्ते. देन वी कैन चूज अ लॉट साइज इन द रेंज ऑफ 25Q 4Q विद एन इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एट मोस्ट 1%. तो हम चूज कर सकते हैं एक लॉट साइज को जो कि रेंज करता हो E नॉट 25Q 4Q, एक इंक्रीज इन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि ऑलमोस्ट 1% हो. This result is based on the assumption that holding cost consists of the interest paid on the lot size stock. ये रिजल्ट बेस करता है इस assumption पे कि holding cost consist होती है interest paid on the lot size stock और interest rate of 10% per year और 10% per year interest rate पर. Further findings including general formulas are presented in Stadler 2007b. In contrast to lead times used in an ERP system, lead times के contrast में जो कि इस्तेमाल होते हैं एक ERP system में, which usually incorporates a large portion of waiting times, जो आम तौर पर incorporate करती है large portion of waiting times को. Lead times in the context of an APS, lead times APS के context में pertaining to uncritical operations, जो कि
पर्टेन करते हैं अनक्रिटिकल ऑपरेशंस पर, शुड ओनली केटर फॉर प्रोडक्शन, इनको सिर्फ केटर करना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, एंड ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज, और ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज के लिए. द रीजन इज दैट बाय डेफिनेशन यूटिलाइजेशन रेट्स ऑफ नॉन बॉटलनेक्स आर लो. वजह यह है कि बाय डेफिनेशन जो यूटिलाइजेशन रेट्स हैं नॉन बॉटलनेक्स के वो लो होते हैं, एंड दस आ प्रोडक्शन ऑर्डर शुड फाइंड द, और इसलिए प्रोडक्शन ऑर्डर को ढूंढना चाहिए द रिसोर्स एम्प्टी इन जनरल, रिसोर्स एम्प्टी को इन जनरल. However, it seems wise to include some safety time into the lead time. इसलिए ये वाइज होगा कि इंक्लूड किया जाए कुछ सेफ्टी टाइम लीड टाइम में, ऑफसेट ऑफ एन अनक्रिटिकल ऑपरेशन, जो कि ऑफसेट होता है एक अनक्रिटिकल ऑपरेशन से, बीइंग अ डायरेक्ट प्रीडिसेसर ऑफ अ क्रिटिकल ऑपरेशन, एक डायरेक्ट प्रीडिसेसर होने की वजह से क्रिटिकल ऑपरेशन का. This will allow for some uncertainties in processing times. ये allow करेगा कुछ uncertainties को processing time में, and will make sure that a bottleneck resource which governs the throughput of the whole supply chain, ये sure करेगा कि एक bottleneck resource जो कि govern करता है throughput of the whole supply chain को, will not run empty, खाली नहीं जाएगा. Another reason why an APS can do with smaller lead times, एक अदर रीजन कि क्यों APS काम करता है smaller lead times के साथ than an ERP system, एक ERP system की निस्बत, and their smaller planned throughput times is due to the fact that lead times in an ERP system also cater for its inability to take into account finite capacity checks of bottleneck resources when making the BOM explosion. एक और रीजन कि एपीएस स्मॉलर लीड टाइम्स के अंदर काम कर सकता है ईआरपी सिस्टम्स के, इसलिए जो छोटे प्लान्स थ्रू आउट द टाइम्स जो चलते हैं ये एक लीड टाइम की वजह से, ईआरपी सिस्टम की लीड टाइम की वजह से केटर होते हैं अपनी इनएबिलिटी ऑफ टेक इनटू अकाउंट फिनिट कैपेसिटी की वजह से, जिनको बॉटलनेक रिसोर्सेज में काउंट किया जाता है जब बीओएम एक्सप्लोजन्स बनाए जाते हैं. हाउएवर, इन ऑर्डर टू अवॉइड एन ओवरलैप ऑफ टू एडजेसेंट ऑपरेशंस, जबकि ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए विच माइट कॉज इनफिजिबिलिटीज, जो कि इनफिजिबिलिटीज कॉज कर सकती है ऑफ कोर्स ओवरलैपिंग. व्हेन इट कम्स टू स्केड्यूलिंग, जब ये स्केड्यूलिंग पे आता है, एन ऑपरेशंस मिनिमम लीड टाइम शुड बी सेट टू 1 पीरियड. तो एक ऑपरेशन के लीड टाइम को कम से कम 1 पीरियड तक सेट करना चाहिए. फ्रॉम दीज लीड टाइम्स नाउ क्यूमुलेटेड लीड टाइम्स हैव टू बी कैलकुलेटेड रिलेटिंग टू एडजेसेंट क्रिटिकल ऑपरेशंस. इन लीड टाइम से अब क्यूमुलेटेड लीड टाइम जो कि कैलकुलेट किया जाता है दो एडजेसेंट क्रिटिकल ऑपरेशन से, सिंपली बाय एडिंग द सिंगल लीड टाइम्स ऑफ ऑपरेशंस अलोंग द पाथ. सिंपली एक सिंगल लीड टाइम को ऐड करके ऑपरेशंस में अलोंग द पाथ इन द बीओएम फ्रॉम द अपस्ट्रीम क्रिटिकल, अपस्ट्रीम क्रिटिकल में से ऑपरेशंस टू द डाउनस्ट्रीम क्रिटिकल ऑपरेशन, अपस्ट्रीम क्रिटिकल ऑपरेशन से डाउनस्ट्रीम क्रिटिकल ऑपरेशंस तक, excluding the lead time of the upstream critical operation. Lead time of upstream critical operation को exclude करके, thereby the finishing point of the downstream critical operation is connected with the finishing point. तो इस तरह finishing point एक downstream critical operation का जो होता है ये connect हो जाता है finishing point के साथ of the upstream critical operation. Consequently, नतीजतन cumulated lead times cover production times. cumulative lead times जो हैं ये production times को cover करते हैं, and transport activities in between two critical operations, और transport activities in between दो critical operations को cover करती हैं, plus the lead time of the downstream critical operation, plus lead time of downstream critical operation को. For example, cumulated lead times for E1 P2, E1 P3 and E2 P3 are 3, 1 and 1 periods respectively. These cumulated lead times as well as cumulated production coefficients, ये cumulated lead times और production coefficients, primary demands and the inventory status of items, primary demand और inventory status of items जो है,
एंड कंपोनेंट्स फॉर्म द इनपुट टू प्रोडक्शन प्लानिंग, और कंपोनेंट्स जो हैं वो इनपुट फॉर्म करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए. फिगर 11.3 shows the primary demand for finished products. फिगर 11.3 शो करती है प्राइमरी डिमांड को फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स E1 एंड E2 क्रिटिकल ऑपरेशंस, E1 और E2 के क्रिटिकल ऑपरेशंस को, एंड रिजल्टेंट प्रोडक्शन ऑर्डर्स टू मीट डिमांड्स फॉर द अपकमिंग 5 पीरियड्स, और रिजल्टेंट प्रोडक्शन ऑर्डर्स को मीट करने के लिए डिमांड्स अगले 5 पीरियड्स के लिए, while taking into account a lead time offset of 1 period, lead time offset of 1 period को in account लेते हुए. This production plan has been generated assuming that operations E1 and E2 are produced on the same machine with a capacity of 40 units per period and that production coefficients are 1. ये प्रोडक्शन प्लान जनरेट किए जाते हैं ये अज्यूम करते हुए कि ऑपरेशंस E1 एंड E2 प्रोड्यूस किए गए सेम मशीन पर 40 यूनिट्स पर पीरियड की कैपेसिटी के साथ, एंड दैट प्रोडक्शन कोएफिशिएंट्स आर 1, और प्रोडक्शन कोएफिशिएंट्स जो है वो 1 है. नोट दैट सम डिमांड्स आर फुलफिल्ड फ्रॉम इनिशियल इन्वेंट्री डैश्ड एरोस. ये भी नोट करेंगे कुछ डिमांड्स जो हैं वो फुलफिल हो जाती हैं एक ही इनिशियल इन्वेंट्री से, जैसे डैश्ड एरोस नजर आएंगे. अगर आप देखिए तो हमारे एक साइड पर पीरियड्स और दूसरी साइड पे मटेरियल गिवन है. मटेरियल E1 डिमांड्स स्टार्टिंग इन्वेंट्री ऑर्डर पीरियड 1 में 30 से 40, पीरियड 2 में 10 से 20 और फिर 20 से 10, पीरियड 3 में 30 से 30, 4 में 20 से इस साइड पर, 5 में 30 से डाउन. इसी तरह E2 जो है दैट इज मूविंग इन अ डिफरेंट वे. Primary demands and production plans for E1 and E2 in quantities per period inventory abbreviated by I and V over here. Positive lead times are the reason why there are no production orders for E1 and E2 in period 5 even though the forecast and planning horizon is 5 periods. Positive lead times reason होती हैं कि क्यों production orders जो हैं E1 और E2 के पीरियड 5 में इवन दो द फोरकास्ट एंड प्लानिंग हराइजन इज 5 पीरियड्स में प्रोड्यूस नहीं होते, जबकि प्लानिंग हराइजन जो है ये भी 5 पीरियड्स का है. सिमिलरली इवन फॉर मटेरियल्स विद अ लो लेवल कोड ग्रेटर देन 0 प्रोडक्शन ऑर्डर्स कवर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. इसी तरीके से इवन के मटेरियल्स जो कि लो लेवल कोड के साथ होते हैं ये ग्रेटर होते हैं 0 प्रोडक्शन ऑर्डर से, जो कि कवर करते हैं स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम को. Consequently, utilization rates near the planning horizon should be interpreted with caution. नतीजतन यूटिलाइजेशन रेट्स जो हैं प्लानिंग होराइजन के करीब इनको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए कॉशन के साथ. Furthermore, it becomes clear that a reasonable planning horizon for production planning should at least cover the longest path. इसके अलावा ये भी क्लियर होना चाहिए कि एक रीजनेबल प्लानिंग होराइजन जो है प्रोडक्शन प्लानिंग का इसको कवर करना चाहिए लॉन्गेस्ट पाथ को विद रिस्पेक्ट टू लीड टाइम्स. फ्रॉम अ फाइनल ऑपरेशन फिनिश्ड प्रोडक्ट टू अ पार्ट विद नो डायरेक्ट प्रीडिसेसर इन द POM. एक फाइनल ऑपरेशन से जिसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलते हैं टू अ पार्ट उस हिस्से तक जहां पर डायरेक्ट प्रीडिसेसर जो है बिल ऑफ मटेरियल में नहीं आता. इन आवर एग्जांपल द लॉन्गेस्ट पाथ इज E1 C1 P1 और E1 C1 P2, both with an overall lead time offset of 4 periods. दोनों एक overall lead time offset जो है जिसके 4 periods हैं. An appropriate planning horizon should also cover a small frozen horizon. एक appropriate planning horizon जो है इसको cover करना चाहिए small frozen horizon को, and some periods for decision making और कुछ periods decision making के लिए. For example, for making lot sizing decisions. मिसाल के तौर पर lot sizing decisions करने के लिए. To keep our example, small production plans for critical operations P2 and P3 are not exhibited here. अपने एग्जाम्पल को small production plans P2 and P3 तक लिखने के लिए एग्जिबिट नहीं किया यहाँ पर, because they don't cause secondary demands, क्योंकि ये secondary demands को cause नहीं करते. Now we are in the position of calculating the time phased order sizes of uncritical operations C1 and P1.
अब हम लोग इस पोजीशन में हैं कि हम कैलकुलेट कर सकें टाइम फेज ऑर्डर साइजेस को ऑफ अनक्रिटिकल ऑपरेशंस C1 एंड P1. Here the logic of a time-phased BOM explosion or Leakey 1975, Templinier 2006 has to be slightly adapted. यहाँ पर लॉजिक जो है टाइम फेज BOM एक्सप्लोजन की, इसको स्लाइटली अडॉप्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट, फिनिश प्रोडक्ट्स दैट इज फाइनल ऑपरेशंस आर ऑलवेज डिक्लेयर्ड क्रिटिकल. पहले तो फिनिश प्रोडक्ट्स जो कि फाइनल ऑपरेशंस की होती हैं, इनको डिक्लेयर करना पड़ता है क्रिटिकल. सेकेंड, all orders for critical operations and possessing at least one uncritical direct predecessor, that is upstream operation, are labeled with low level code 0. दूसरे नंबर पर तमाम ऑर्डर्स क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए और जो कि पोजेस करते हैं एटलीस्ट वन अनक्रिटिकल डायरेक्ट प्रीडिसेसर को, दैट इज अपस्ट्रीम ऑपरेशन, इनको लेबल किया जाता है लो लेवल कोड 0 के साथ. नाउ वी कैन स्टार्ट विद एनी ऑपरेशन बिलोंगिंग टू लो लेवल कोड 0. अब हम स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी ऑपरेशन को जो कि बिलोंग करता हो लो लेवल कोड 0 के साथ, एंड डिराइव द एसोसिएटेड सेकेंडरी डिमांड्स, और एसोसिएटेड सेकेंडरी डिमांड्स को डिराइव कर सकते हैं फॉर ऑल इट्स अनक्रिटिकल डायरेक्ट प्रीडिसेसर्स, इसके तमाम अनक्रिटिकल डायरेक्ट प्रीडिसेसर्स के लिए. Operations by multiplying a period's order size, for example, generated in production planning by the production coefficient and placing it in the same time period. For example, the order for operation C1 for 20 units, मिसाल के तौर पे जैसे order of operation है C1 का 20 units का, must be ready at the beginning of period in order to be used for the assembly operation E1 in period 1. इसको लाजमन तैयार होना चाहिए अगले पीरियड के शुरू में ताकि इस्तेमाल किया जा सके इन असेंबली ऑफ E1 और पीरियड 1 में. इन ऑर्डर टू नो विच ऑपरेशन कॉज द सेकेंडरी डिमांड वी फर्दर स्टोर इट्स नेम. ये जानने के लिए कि कौन सा ऑपरेशन सेकेंडरी डिमांड को कॉज करता है, हम फर्दर स्टोर करते हैं इसके नाम को. सी द ऑपरेशंस नेम्स इन ब्रैकेट्स in figure 11.4. This identification is called pegging. ये identification pegging कहलाती है and can be most useful in the case that operations are not ready in time. और ये बहुत यूजफुल होती है इस केस में कि ऑपरेशंस जो हैं ये रेडी नहीं है उस वक्त में. Then it is easy to see which orders are affected and thus specific counter actions can be initiated. फिर ये आसान तो है देखना कि कौन से ऑर्डर्स इफेक्ट होते हैं और फिर स्पेसिफिक काउंटर एक्शंस जिनको इनिशिएट किया जा सकता है. अगर यहां से देखिए LLC ऑपरेशंस हैं E1 E2, LLC लो लेवल कोड है 0 0 1 एंड 2, ऑपरेशंस E1 E2 C1 P1. ऑर्डर्स हैं, स्टार्टिंग इन्वेंट्री है और नेट डिमांड ऑर्डर्स हैं. तो एक्सप्लेनेशंस हैं दिस BOM एक्सप्लोजन विद pegging. Once direct secondary demands have been calculated, एक मर्तबा डायरेक्ट सेकेंडरी डिमांड्स को कैलकुलेट कर लिया जाए फॉर ऑल लो लेवल कोड, तमाम लो लेवल कोड्स पर 0 ऑपरेशंस, देन सेकेंडरी डिमांड्स ऑफ लो लेवल कोड 1 ऑपरेशंस आर कंप्लीट. तो सेकेंडरी डिमांड ऑफ लो लेवल कोड 1 जो है ऑपरेशंस की वो कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट ऑर्डर्स फॉर एनी लो लेवल कोड 1 ऑपरेशन. नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्डर्स को किसी भी लो लेवल कोड 1 ऑपरेशन के एंड एक्सप्लोड दीज इनटू द सेकेंडरी डिमांड्स, और इनको एक्सप्लोड कर सकते हैं सेकेंडरी डिमांड में ऑफ इट्स डायरेक्ट प्रीडिसेसर्स, इसके डायरेक्ट प्रीडिसेसर्स में. दिस इज ओनली नेसेसरी फॉर अनक्रिटिकल डायरेक्ट प्रीडिसेसर्स. ये सिर्फ जरूरी है अनक्रिटिकल डायरेक्ट प्रीडिसेसर्स के केस में, बिकॉज अ प्रोडक्शन प्लान एग्जिस्ट फॉर द क्रिटिकल ऑपरेशंस. चूंकि प्रोडक्शन प्लान एग्जिस्ट करता है क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए. However, a BOM explosion into critical operations may also be useful in order to check the feasibility of the production plan. जबकि एक BOM explosion जो है
क्रिटिकल ऑपरेशंस में ये भी यूजफुल हो सकती है इन ऑर्डर टू चेक द फिजिबिलिटी चेक करने के लिए ऑफ द प्रोडक्शन प्लान. In case there is a mismatch of orders between the production plan and the BOM explosion, फर्ज करें कि अगर एक मिसमैच हो ऑर्डर्स के दरमियान प्रोडक्शन प्लान और BOM एक्सप्लोजन में, एन अलर्ट शुड बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली, तो एक अलर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होनी चाहिए. बिफोर स्टार्टिंग द BOM एक्सप्लोजन, बिल ऑफ मटेरियल एक्सप्लोजन शुरू होने से पहले, वी विल हैव टू कैलकुलेट नेट डिमांड्स बाय नेटिंग ग्रॉस डिमांड विद इनिशियल इन्वेंट्री. तो हमें कैलकुलेट करना होगी नेट डिमांड को, जो कि नेट ऑफ ग्रॉस डिमांड को विद इनिशियल इन्वेंट्री. दिस लॉजिक may be more elaborated than shown in our example by considering safety stock requirements. ये लॉजिक ज्यादा एलेबोरेट हो सकती है देन जो कि एग्जाम्पल हम शो करते हैं सेफ्टी स्टॉक रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करते हुए. आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड रिजर्वेशंस, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स और रिजर्वेशंस के साथ. गिवन द नेट डिमांड्स ऑफ एन ऑपरेशन, दीज हैव टू बी टाइम फेस्ड. नेट डिमांड्स ऑफ ऑपरेशंस लेते हुए इनको हमें टाइम फेस करना पड़ता है, एंड असाइन टू एन ऑर्डर पीरियड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द ऑपरेशंस लीड टाइम ऑफसेट. और हमें असाइन करता है ऑर्डर पीरियड को बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द ऑपरेशंस लीड टाइम, ऑपरेशंस लीड टाइम को इन अकाउंट लेते हुए ऑफसेट. दीज टास्क्स आर रिपीटेड अंटिल ऑल ऑपरेशंस हैव बीन कंसिडर्ड. ये टास्क्स रिपीट होते हैं जब तक के तमाम ऑपरेशंस कंसिडर ना हो जाएं. One may ask what reasons there are for generating an alert during the BOM explosion. एक बंदा पूछ सकता है कि क्या जरूरत है कि हम अलर्ट जनरेट करें BOM explosion के दौरान. Obviously, if we started from an infeasible production plan, अगर हमने एक infeasible production plan से start किया, for example with backlogging, then the BOM explosion would also generate alerts. बैकलॉगिंग के साथ तो BOM एक्सप्लोजन भी जनरेट करेगा अलर्ट्स शोइंग दैट सम मटेरियल्स आर नॉट रेडी इन टाइम, शो करते हुए कि कुछ मटेरियल जो है वो इन टाइम तैयार नहीं है. एट दिस स्टेज अ पॉपुलर काउंटर मेजर वुड बी एक्सपीडाइटेड. एक स्टेज पर एक पॉपुलर काउंटर मेजर जो है वो एक्सपीडाइट होगा, रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड लीड टाइम्स, जो कि रिजल्ट होगा रिड्यूस्ड लीड टाइम्स के अंदर. A second reason for a mismatch of a feasible production plan, second reason जो कि mismatch की है एक feasible production plan के, and the result of a BOM explosion may be that, और BOM explosion plan जो है उसके result की कि lead times used in production planning are independent, कि lead times जो है in production plannings में ये independent होते हैं of the amount produced, जितनी भी हम production करें. While in a BOM explosion lead times can be calculated based on the order size, जबकि BOM में हम लीड टाइम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्डर साइज की बेसिस के ऊपर. अगेन एनी डिस्क्रिपेंसी जेपर्डाइजिंग एफिशिएंसी, दोबारा कोई डिस्क्रिपेंसी जो कि एफिशिएंसी को डिस्टॉर्ट करती है, और फिजिबिलिटी शुड बी शोन टू द डिसीजन मेकर बाय एन अलर्ट, या फिजिबिलिटी को इसको शो करना चाहिए डिसीजन मेकर को बाय एन अलर्ट. While the logic of the BOM explosion is rather simple, जबकि लॉजिक ऑफ BOM एक्सप्लोजन जो है ये रादर सिंपल है, इंप्लीमेंटिंग द इंटरफेस बिटवीन द प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, जो कि इंप्लीमेंट करता है एक इंटरफेस को प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल के दरमियान, एंड द MRP मॉड्यूल में भी ट्रिकी, और MRP मॉड्यूल में जो कि ट्रिकी होगा. वन इशू इज द जनरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ अलर्ट्स बिटवीन मॉड्यूल्स. एक इशू है इसको जनरेट करना और एक्सचेंज करना अलर्ट्स को बिटवीन मॉड्यूल्स. In order to avoid the complexity of an arbitrary mix, complexity को avoid करने के लिए एक arbitrary mix के of critical and uncritical operations, critical और uncritical operations की, some APS vendors propose a distinct separation. कुछ APS members जो हैं एक distinct separation propose करते हैं. The final operation resulting in a finished good, एक फाइनल ऑपरेशन जो कि फिनिश गुड में रिजल्ट होता है, इज ऑलवेज डिफाइंड एज क्रिटिकल. इसको हमेशा क्रिटिकल डिफाइन किया जाता है. ऑल्सो एनी अपस्ट्रीम ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड एज क्रिटिकल. इसके अलावा किसी भी अपस्ट्रीम ऑपरेशन को क्रिटिकल डिफाइन किया जा सकता है
However, a critical operation may never possess a direct uncritical downstream. जबकि क्रिटिकल ऑपरेशन जो है ये कभी पोजेस नहीं करता एक डायरेक्ट अनक्रिटिकल डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन को. दिस कैन बेस्ट बी इलस्ट्रेटेड बाय आवर एग्जांपल. ये इलस्ट्रेट किया जा सकता है बेस्ट विद दिस एग्जांपल जो कि 11.2 की है. ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ गॉसिंथोग्राफ, जो कि हमने ट्रांसफॉर्म किया है गॉसिंथोग्राफ में. Here a separation line divides operations into the set of critical operations. यहाँ पर separation line जो है ये divide करती है operations को एक set of critical operations में and the set of uncritical operations. ये separation line इनको divide करती है critical operations और uncritical operations के दरमियान. ये देखिए एक critical operations है और फिर एक uncritical operations है. क्रिटिकल ऑपरेशंस में अगर आप देखिए तो E1, E2, P3, C1, जबकि अनक्रिटिकल ऑपरेशंस में P2 सिर्फ शामिल है. एक्सप्लेनेशंस. E1, E2 रिप्रेजेंट एंड प्रोडक्ट्स, C1 अ कंपोनेंट एंड P1, P2, P3 सिंगल पार्ट्स. सिंगल डिजिट्स इंडिकेट प्रोडक्शन एफिशिएंट्स. मटेरियल्स इन सर्कल्स आर रिगार्डेड एज क्रिटिकल, मटेरियल्स इन बॉक्सेस एज अनक्रिटिकल. The dashed line separates critical from uncritical operations. So Gauss-Vinto representation of the bill of materials with a separation line for the set of critical and the set of uncritical operations. The advantage is that production planning can be executed first. इसका फायदा यह है कि production planning पहले execute की जा सकती है, followed by the BOM जो कि follow होती है bill of materials से, और BOC explosion for uncritical operations या BOC एक्सप्लोजन से जो कि अनक्रिटिकल ऑपरेशंस की वजह से है. एंड वन कैन बी श्योर दैट बोथ प्लान्स विल मैच, और एक बंदा श्योर हो सकता है कि दोनों प्लान्स जो हैं वो मैच करेंगे. हेंस एन एक्सचेंज ऑफ अलर्ट्स बिटवीन मॉड्यूल्स इज अननेसेसरी. इसलिए एक्सचेंज ऑफ अलर्ट्स जो है मॉड्यूल्स के दरमियान इसकी जरूरत नहीं है. ऑल्सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट, मेंटेन एंड यूज क्यूमुलेटेड लीड टाइम्स और क्यूमुलेटेड प्रोडक्शन कोएफिशिएंट्स. इसके अलावा इसकी भी जरूरत नहीं है कि हम कैलकुलेट करें, मेंटेन करें और यूज करें क्यूमुलेटेड लीड टाइम्स को या क्यूमुलेटेड प्रोडक्शन कोएफिशिएंट्स को. द डिसएडवांटेज इज दैट सम फॉर्मली अनक्रिटिकल ऑपरेशंस नाउ हैव टू बी डिक्लेयर्ड एज क्रिटिकल. डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि कुछ जो पहले हमने अनक्रिटिकल ऑपरेशंस को डिक्लेयर किया हुआ था अब उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा क्रिटिकल. फॉर एग्जांपल C1 which increases the scope and efforts of production planning. C1 जो कि increase करती है scope और efforts of production planning को, especially if the most upstream operations are processed on a bottleneck resource. खास तौर पे अगर बहुत से upstream operations को process किया जाए bottleneck resource पे, then nearly all operations in the BOC have to be defined as critical. तो फिर तमाम ऑपरेशंस को BOC में डिफाइन करना पड़ता है एज क्रिटिकल. रेफरिंग टू आवर एग्जांपल, द जनरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर्स फॉर P1 नाउ स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑर्डर्स. अगर हम अपनी एग्जांपल को रेफर करें तो जो परचेज ऑर्डर जनरेट होते हैं P1 से अब स्टार्ट होते हैं फ्रॉम प्रोडक्शन ऑर्डर्स फॉर E2 एंड EC. तो E2 और EC से स्टार्ट होते हैं. सी फिगर 11.6. For simplification purposes, we assume here that production orders for C1 generated by production planning are equal to those derived by the BOM explosion. Simplification के लिए हम assume करते हैं कि production orders C1 के ये generate होते हैं by production planning जो कि equal है, जो कि derive होते हैं from BOM explosion. Now applying the BOM explosion for P1 provides the same results as before. अब BOM एक्सप्लोजन को अप्लाई करते हुए P1 प्रोवाइड करता है सेम रिजल्ट्स जो कि पहले आ रहे थे. द ओनली डिफरेंस इज दैट कंप्यूटेशनल एफर्ट्स विल बी स्मॉलर. फर्क सिर्फ इतना है कि कंप्यूटेशन एफर्ट्स जो है वो स्मॉल हो जाएंगी, while they will be larger for production planning, जबकि ये प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए लार्जर होंगी. Not shown here. जैसे आप देख सकते हैं यहां पर BM explosion with pegging. Given that
the production plan started from is feasible and no alerts have been generated during the BOM explosion. प्रोडक्शन प्लान स्टार्ट होता है फिजिबल से और कोई अलर्ट्स जो है वो जनरेट नहीं होते ड्यूरिंग BOM एक्सप्लोजन है. देन ऑल प्रोडक्शन ऑर्डर्स फॉर क्रिटिकल एंड अनक्रिटिकल ऑपरेशंस आर नोन. तो तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो क्रिटिकल और अनक्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए इनका पता होता है एंड कैन बी हैंडेड ओवर फॉर एग्जीक्यूशन, और इनको हैंड ओवर किया जा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए, एटलीस्ट फॉर द अपकमिंग पीरियड. सी चैप्टर 4. द ओनली एक्सेप्शन आर परचेज ऑर्डर्स टू आउटसाइड सप्लायर्स. सिर्फ एक एक्सेप्शन है परचेज ऑर्डर्स की आउटसाइड सप्लायर्स के लिए, विच मे नीड फर्दर अटेंशन ड्यू टू फिक्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो कि नीड कर सकती है फर्दर फिक्स ऑर्डर कॉस्ट को और क्वांटिटी डिस्काउंट्स को, विच विल बी डेल्ट विद नेक्स्ट, जो कि बाद में डील की जा सकेगी. क्वांटिटी डिस्काउंट्स एंड सप्लायर सिलेक्शन. लाइफ साइकिल कॉन्ट्रैक्ट्स आर predominant today in many industries for the most important production input. लाइफ साइकिल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये प्रीडोमिनेंट हैं आजकल कई इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन इनपुट के लिए. ऑल्सो materials to be purchased and considered strategically important are usually procured from a supply chain partner. इसी तरह मटेरियल्स जो कि परचेज किए जाते हैं और कंसिडर किए जाते हैं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, ये यूजुअली प्रोक्योर होते हैं फ्रॉम अ सप्लाई चेन पार्टनर. हाउएवर देयर आर अ नंबर ऑफ एडिशनल मटेरियल्स, जबकि नंबर ऑफ एडिशनल मटेरियल्स हैं विच आर परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स, जो कि परचेज किए जाते हैं आउटसाइड सप्लायर्स से. वेयर इट मे बी इकोनॉमिकल टू सेलेक्ट अ सप्लायर, जबकि ये इकोनॉमिकल होगा सप्लायर का सेलेक्ट करना, एंड टू डिसाइड ऑन द ऑर्डर साइज इन द शॉर्ट टर्म, और ऑर्डर साइज को डिसाइड करना शॉर्ट टर्म में, एंड टू मेक यूज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट्स, और क्वांटिटी डिस्काउंट्स का इस्तेमाल में लाना. दीज मटीरियल्स में बी कमोडिटीज यूज्ड एज डायरेक्ट प्रोडक्शन इनपुट. ये मटीरियल्स कमोडिटीज भी हो सकती हैं जिनको एज ए डायरेक्ट प्रोडक्शन इनपुट यूज किया जाता है. ऑफन क्लासिफाइड एज सी आइटम्स, जिनको हमेशा एज सी आइटम्स क्लासिफाई किया जाता है, एज वेल एज मटीरियल्स फॉर मेंटेनेंस, और मटीरियल्स फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. इन द केस ऑफ अ कमोडिटी के केस में क्वालिटी इज ऑल्सो डिफाइंड बाय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. क्वालिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से डिफाइन होती है. एंड देयर आर यूजुअली अ नंबर ऑफ सप्लायर्स टू चूज फ्रॉम, और बहुत से सप्लायर्स होते हैं जिनसे चूज किया जा सकता है. Also, it can be assumed that the quantity to be purchased is rather low compared to the overall market volume. ये भी assume किया जा सकता है कि क्वांटिटी जो कि परचेज की जा रही है ये लो होगी as compared to the overall market volume, so that availability is no problem, ताकि availability को मसला ना रहे. Examples are standard electronic components. Examples इसकी standard electronic components हैं like a capacitor, और ऑफिस इक्विपमेंट बॉट विद द हेल्प ऑफ एन ई कैटलॉग. इसकी एग्जांपल्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कैपेसिटर या ऑफिस इक्विपमेंट जिसको बाय किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ एन ई कैटलॉग के थ्रू. इन एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट डिसीजन इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग फीचर्स. एब्स्ट्रैक्ट में प्रोक्योरमेंट डिसीजन जो कि इनकॉर्पोरेट करता है फॉलोइंग फीचर्स को. For each item to be purchased, there is a time series of demands. हर आइटम के लिए जो कि परचेज की जाती है एक टाइम सीरीज है डिमांड की ओवर अ फिनिट प्लानिंग इंटरवल, एक फिनिट प्लानिंग इंटरवल तक. फॉर एग्जाम्पल सी रो ऑर्डर फॉर आइटम P1 11.4. देयर मे बी वन और सेवरल सप्लायर्स टू चूज फ्रॉम, ईच विद स्पेसिफिक कॉस्ट. यहाँ पर कई सप्लायर्स होंगे, एक या कई सप्लायर्स होंगे जिनको चूज करना पड़ता है ईच स्पेसिफिक कॉस्ट. दीज कॉस्ट विल इनकर, ये कॉस्ट इनकर करेंगी सप्लायर स्पेसिफिक फिक्स्ड ऑर्डरिंग एंड प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, सप्लायर स्पेसिफिक फिक्स्ड ऑर्डरिंग और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंसाइनमेंट, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट शामिल है, सप्लायर स्पेसिफिक क्वांटिटी डिस्काउंट्स, supplier specific quantity discounts, either all units or incremental discounts.
Figure 11.7 illustrates the two most popular forms of quantity discounts. यहाँ पर देखिए incremental discounts and all units discount with 3 purchasing intervals. Q1, Q2 and Q3 ये quadrants हैं, quarters हैं, और total acquisition cost. अगर आप देखिए incremental discounts are there and all unit discount अगर देखें तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ क्रिएट होता है. Here the supplier's fixed ordering cost is depicted as U. यहां पर सप्लायर की फिक्स ऑर्डरिंग कॉस्ट को डिपिक्ट किया जाता है U से ऑन द टोटल एक्विजिशन कॉस्ट एक्सिस, टोटल एग्जीक्यूशन कॉस्ट एक्सिस पर. द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर क्वांटिटी, एक्स एक्सिस ऑर्डर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. देयर आर 3 परचेजिंग इंटरवल्स, 3 परचेजिंग इंटरवल्स हैं, ईच विद अ स्पेसिफिक प्राइस पर यूनिट, हर एक स्पेसिफिक प्राइस पर यूनिट के साथ. इन द ऑल यूनिट्स डिस्काउंट केस the price charge for the last unit ordered also holds for the total order quantity. तमाम यूनिट डिस्काउंट केसेस में प्राइस जो चार्ज की जाती है लास्ट यूनिट ऑर्डर पर वो होल्ड करती है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को भी. इन एन इंक्रीमेंटल डिस्काउंट केस में only those units falling within a purchasing interval are charged with the corresponding price. इंक्रीमेंटल डिस्काउंट केस में सिर्फ वो यूनिट्स जो कि परचेजिंग इंटरवल में फॉल करते हैं चार्ज किए जाते हैं विद द कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइसेस. सी लोअर बाउंड्स Q1 एंड Q2 ऑफ परचेजिंग इंटरवल्स 2 and 3 इन फिगर 11.7. इन बोथ केसेस इट इज वाइज टू स्टिक टू वन सप्लायर. दोनों केसेस में अक्लमंदी होगी कि एक सप्लायर तक स्टिक रहा जाए. एंड आइटम पर पीरियड, एक सप्लायर और एक आइटम पर एक पीरियड में. एंड नॉट टू स्प्लिट द ऑर्डर, और ऑर्डर को स्प्लिट ना करें, बिकॉज दिस विल रिजल्ट इन द लोएस्ट टोटल एक्विजिशन कॉस्ट. क्योंकि इसकी वजह से लोएस्ट टोटल एक्विजिशन कॉस्ट नतीजा बनेगी. ओनली इफ द अमाउंट ऑर्डर एक्सीड्स द मैक्सिमम अ सप्लायर इज एबल टू प्रोक्योर. सिर्फ एक अमाउंट ऑर्डर अगर एक्सीड करती है, मैक्सिमम अ सप्लायर इज एबल टू प्रोक्योर एंड अदर सप्लायर विल कम इनटू प्ले. एक और सप्लायर जो है वो दाखिल हो जाएगा इस प्ले में. इन जनरल द डिमांड ऑफ सेवरल पीरियड्स विल बी कंबाइंड व्हेन फॉर्मिंग परचेज ऑर्डर्स in order to make use of attractive price reductions for a large quantity. Generally demand of several periods जो है ये combine होगी जब purchase orders form किए जाते हैं in order to make use of attractive price reductions को बनाने के लिए एक large quantity की. Large orders quantities usually result in holding stocks for some periods. Thus holding costs counteract savings due to quantity discounts. इसलिए holding costs counteract करती हैं saving due to quantity discounts. Note that it might be difficult to specify an item's correct holding cost. नोट करें कि ये मुश्किल हो सकता है स्पेसिफाई करना एक आइटम की करेक्ट होल्डिंग कॉस्ट को पर पीरियड, बिकॉज अ लार्ज पोर्शन ऑफ द होल्डिंग कॉस्ट इज इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड. चूंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा होल्डिंग कॉस्ट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है. सिंस एन आइटम्स परचेज प्राइस कैन चेंज ओवर टाइम, चूंकि आइटम की परचेज प्राइस चेंज हो सकती है टाइम के लिहाज से, especially if there are time independent supplier specific quantity discounts. खास तौर पर अगर यहाँ पर time dependent supplier specific quantity discounts हो तो one does not know in advance which items will be in inventory. कोई बंदा एडवांस में नहीं जान सकता कि कौन से आइटम्स जो हैं वो इन्वेंट्री में होंगे and at which price और किस प्राइस पर. One way to overcome this problem is to keep track of each item purchased. एक रास्ता इसको ओवरकम करने का ये है कि इनका ट्रैक रखा जाए तमाम परचेसेस का. इट्स परचेज प्राइस, इसकी परचेज प्राइस का, परचेजिंग पीरियड एंड द पीरियड ऑफ कंजम्पशन, इसके परचेजिंग पीरियड का और पीरियड ऑफ कंजम्पशन का. तो क्या बात हुई
कि एक आइटम जो कि परचेज की जा रही है ये चेंज हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पेशली उस वक्त जब ये टाइम डिपेंडेंट सप्लायर स्पेसिफिक क्वांटिटी डिस्काउंट हो। तो एक बंदे को नहीं पता इन एडवांस कि कौन सा आइटम इन्वेंट्री के तौर पर रहेगा और किस प्राइस पर। तो इसको ओवरकम करने का एक तरीका तो ये है कि आप ट्रैक करें हर आइटम जो आपने परचेज किया, इसकी प्राइस को, इसके पीरियड को और इसके पीरियड ऑफ कंजम्पशन को। तो आज के लिए यहीं पर ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग उस इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे कि जो कुछ हमने पढ़ा उसको हम लोग इलस्ट्रेट भी कर सकें। तो लेक्चर खत्म करने से पहले लेट्स हैव अ समरी। द लेक्चर हैज एक्सप्लेन्ड द बेसिक concepts of material requirement planning and detailed understanding of generation and timing of uncritical orders. इस लेक्चर में हम लोगों ने कोशिश की कि बेसिक्स ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग और स्केजुलिंग और डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरेशन एंड टाइमिंग ऑफ अनक्रिटिकल ऑर्डर्स को डिस्कस करें। क्वांटिटी डिस्काउंट्स एंड सप्लायर सिलेक्शन वाज आल्सो डिस्कस्ड। क्वांटिटी डिस्काउंट और सप्लाई सिलेक्शन को भी डिस्कस किया गया। The way APS can support the selection of suppliers and the decisions on order sizes, taking into account the specific cost functions of suppliers, which often allow for quantity discounts. तो हमने APS को इस वे में देखा कि कैसे suppliers को select किया जाता है, कैसे decisions किए जाते हैं, कैसे specific cost functions of suppliers और quantity discounts को incorporate किया जाता है। This may apply to input materials for production. ये अप्लाई किया जा सकता है इनपुट मटेरियल फॉर प्रोडक्शन के लिए, इनडायरेक्ट मटेरियल्स और आर्टिकल्स ऑफ मर्चेंडाइज के लिए। द ऑटोमेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बाय मींस ऑफ एन एपीएस मॉड्यूल कैन स्ट्रीमलाइन द ट्रेडिशनल लेबर इंटेंसिव टास्क्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। ये जो ऑटोमेशन है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की एपीएस मॉड्यूल के थ्रू, ये स्ट्रीमलाइन कर देगा ट्रेडिशनल लेबर इंटेंसिव टास्क जो है प्रोक्योरमेंट का। मतलब अगर हम इसको ऑटोमेट कर दें तो जो लेबर इंटेंसिव है, जहां पर लोग बार बार लगे होते हैं, वो रिड्यूस हो जाएगा। स्पेशली इन B2B इन्वायरमेंट, खास तौर पर इन B2B इन्वायरमेंट, ऑप्टिमाइज्ड प्रोक्योरमेंट डिसीजंस कैन फर्दर रिड्यूस होल्डिंग एंड टोटल एक्विजिशन कॉस्ट बाय एक्सप्लॉइटिंग क्वांटिटी। ये जो ऑप्टिमाइज्ड प्रोक्योरमेंट डिसीजंस होते हैं ये फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं होल्डिंग और टोटल एक्विजिशन कॉस्ट को बाय एक्सप्लॉइटिंग क्वांटिटी डिस्काउंट्स एंड सेलेक्टिंग सप्लायर्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल, और बेस्ट वे पॉसिबल में सप्लायर को सेलेक्ट करके। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर मजा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखेंगे और खुश भी रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।